Good evening, friends. Today we are going to start with the second chapter. In previous lecture, we had seen the theory part of the not-for-profit concern, how it works, what is the motto of not-for-profit concern, what accounts to be prepared on which basis, and what is the difference between trading account and profit and trading account, uh, trading organizations and non-trading organization, how what they prepare. You know that final accounts of trading organization, there is a preparation of trial balance, and on that basis they prepare trading account, profit and loss account, and balance sheet, as well as they need to prepare the partners capital account if it is partnership firm. Then we had seen in the non-trading concern there is a base of receipt and payments account which they prepare throughout the year, in which inflow of cash and outflow of cash is recorded in receipt and payment account. On that basis they prepare the income and expenditure account, which is our first solution in these practical problems of not for profit concern. And second is balance sheet. As usual, we are going to prepare the balance sheet here also. Here is also similar nature of balance sheet, but the items of the balance sheet will be found different one. So we are going to see that in this video. We will see the system of solving these problems, practical problems of not for profit concern. So for that you must patiently see the first lecture also. First lecture, first video, you should go through it. You should understand what is the base for it. So please go through that video. Let's start with the solution of the problem number 2 of not for profit concern. The problem number 1, sorry, it is a problem number 1. The topic is useful for HSC and FY BCom students. Currently it is included in FY BCom. So problem number 1 we are going to start. It is simple problem that it is given in the textbook only of 12th class, which is a new book. There is many mistakes in the book, but be careful while solving it. Take guidance of your teacher here. And I am also going to teach you, I am also going to guide you wherever it is wrong. Some printing mistakes are provided in the printing mistakes are made in the books. Yeah, we will discuss it later on. Let's see the problem. In the problem, it is given from the following receipt and payments account and adjustment given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. जब हम ये रीड करते हैं 31st मार्च 2020, यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है क्या ये साल कौन सा होगा, इसका करंट ईयर कौन सा होगा, 2019 to 20 ऑफ वेन्ना कल्चरल एसोसिएशन सातारा. It is a receipt and payment account given of Venna Cultural Association. Receipt and payment account आपको दिया है. In some problems the balance sheet also provided. Generally balance sheet also provided. Last year का balance sheet आपको दिया होता है, पर यहाँ पे नहीं दिया है. And we need to prepare only income and expenditure account. But I am also going to teach you that how to prepare balance sheet also with this type of problem also. प्रॉब्लम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे होता है ये हमने तो कल देख लिया था, पर एक्चुअली प्रॉब्लम्स में ये कैसा दिखाई देता है विथ फिगर्स दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व टुडे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंसेस डेबिट पे दिए होते हैं. रिसीट साइड इज योर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज योर पेमेंट साइड. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है और ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस है, मतलब ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई देंगे. उसके नीचे दिया है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के 3 साल के सब्सक्रिप्शन ने आपको दिए है 2018-19, 2019-20, 2020-21. उसमें से इस साल का सब्सक्रिप्शन कौन सा है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़. ये मैं आपसे बस डिस्कस कर रहा हूँ, आगे जाके और सॉल्व कर रहे हैं. ओके, लेट्स डिस्कस दिस आइटम्स ऑल्सो. सब्सक्रिप्शन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपको ये जान लेना है पहले कि 1 लाख रुपीज़ इज अ करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, इट इज़ अ करंट ईयर इनकम. सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट 1 लाख ओनली. 18-19 और 2021 का प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, हम इसे क्या बोलने वाले हैं 2020-21 को नेक्स्ट ईयर,
और 2018-19 को प्रीवियस ईयर बोलने वाले। सो ये 2 साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करते वक्त कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही मैंने डिस्कस किया है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखाने हैं वो करंट ईयर से ही रिलेटेड होने चाहिए, वेदर दे आर पेड और नॉट पेड, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। जो भी इनकम है रिसीव्ड इस साल हुआ है और ड्यू है, वो भी दोनों भी वहाँ पे दिखाए जाएंगे। और एक्सपेंसेस के बारे में भी सेम, कि एक्सपेंसेस जो ड्यू होंगे मतलब लायबल टू पे है वो भी ऐड करने, मतलब आउटस्टैंडिंग वो भी ऐड करने हैं। और इफ़ इट इज़ करंट ईयर ओनली पेड ओनली, दैट आल्सो विल बी रिकॉर्डेड। पर नेक्स्ट ईयर और प्रीवियस ईयर का डाटा आपको माइनस डिडक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। देन डोनेशन इज गिवन, डोनेशन का टाइप कौन सा है वो देख लो, जनरल टाइप। इससे आपको याद आता है 25,000 का जो डोनेशन है ये जनरल टाइप का है, स्पेशल डोनेशन नहीं है, मतलब इसकी ट्रीटमेंट आपकी इनकम साइड में ही आएगी। ओके, जो जैसे मैंने कल आपको बोला था कि रिसिट साइड से आप प्रिपेयर करोगे इनकम साइड, तो ये जो आइटम्स है सब्सक्रिप्शन पहला, दूसरा डोनेशन, ये दोनों इनकम में आने वाले हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस का कुछ भी नहीं करना है, उसे छोड़ देना है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस ईयर्स अकाउंट्स। ओके, इस साल के अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इज योर ऑल्सो प्योरली इनकम आइटम, बट इन सम प्रॉब्लम्स it might be capitalized. If it is a big figure, that time it is the general might be capitalized. If it is given, then only capitalize, otherwise write it in income column. देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट आपको इनकम है, अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वो आपका एसेट हुआ, उस पर जो मिला इंटरेस्ट है वो आपका इनकम हुआ। देन पिकनिक रिसीट्स, पिकनिक रिसीट्स मतलब जो पिकनिक अरेंज किया था कल्चरल इस एसोसिएशन ने, वेन्ना कल्चरल एसोसिएशन ने, इनका जो भी पिकनिक उन्होंने अरेंज किया था उसके लिए जो रिसिट उनकी मिली है 20,000 की, जो आपको दिखाई दे रही है, वो 20,000 की रिसीट्स उनको एज अ इनकम ट्रीट करना है, क्योंकि उसमें से ही वो बाद में खर्चा करने वाले, पे करने वाले एक्सपेंसेस ऑफ पिकनिक। ओके, लेट्स सी द पेमेंट साइड। तो ये पिकनिक रिसीट भी कहा जाएगा, इनकम में जाएगा। लेट्स सी द क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड। रेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये रेंट क्रेडिट में मतलब पेमेंट में, मतलब ये जाएगा एक्सपेंडिचर में। अभी पेमेंट साइड से हम प्रिपेयर करने वाले कौन सी साइड, आपकी एक्सपेंडिचर साइड। करंट ईयर का कौन सा है उसमें से, प्रिंट 54,300। देन फिक्स डिपॉजिट इज योर एसेट, फिक्स डिपॉजिट क्या है, आपका एसेट है, ये आपका एक्सपेंडिचर नहीं है। आपको कुछ एसेट यहाँ पे दिखाई देंगी, सम एसेट विल बी फाउंड इन पेमेंट साइड, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको यहाँ पे इमीडिएटली टिक मार्क करना है, यू विल राइट दिस प्रॉब्लम, अगेंस्ट दैट जस्ट टिक मार्क ए, L for liability, A for asset, I for income, E for expenditure, like this. Sundry expenses क्या है आपका, expenditure, it is in the name only it is given. Sundry expenses आपका क्या है, expenditure, तो आएगा expenditure में। इंश्योरेंस दिया है, इंश्योरेंस आपका प्योरली एक्सपेंडिचर आइटम है, एक्सपेंडिचर साइड में ही आएगा, मतलब डेबिट साइड में ही आएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज गिवन, एक्सपेंडिचर है। पिकनिक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है। सैलरीज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो एक्सपेंडिचर। अब आता है सवाल एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि उसके ब्रैकेट में कुछ तो भी इम्पोर्टेंट बताया है। व्हाट इज गिवन बाय एडवर्टाइजमेंट 2018-19, अमाउंट इज 7,000, मतलब ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस पे किया है क्या, नहीं, करंट ईयर का ड्यू नहीं था, लास्ट ईयर का था, करंट ईयर में पे किया है, तो इस साल के एक्सपेंडिचर में इसे कंसिडर करना है क्या, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वी हैड कंसिडर्ड इट इन द प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर ओनली, सो वी विल नॉट कंसिडर दिस एक्सपेंसेस इन करंट ईयर्स एक्सपेंडिचर साइड, इसे हमें पोस्ट करना ही नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके, देन बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज प्रोवाइडेड
टू बैलेंसेस, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दो एसेट के बैलेंसेस आपको दिए, ये दोनों एसेट से आपकी एसेट में ही जाएंगी 15,000 एंड 16,000. लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम solution. There is an adjustment also, some adjustments might be given. एडजस्टमेंट के भी टिक मार्क कर लो. आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आपको दिखाई दिया था एक्सपेंडिचर में, मतलब ये पेमेंट है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट है करंट ईयर का, ये तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा. 7,000 आपको दो इफेक्ट इसके देने, यू नो इट as we were doing in a partnership firm. Add back in the main item and show it in liability. 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड. कैपिटलाइज करना मतलब क्या, 60% जो एंट्रेंस फीस का अमाउंट है वो उसमें से 60% डिडक्ट करना है, और 40% ही आपको एज एन इनकम दिखाना है. मतलब 60% जो आपका अमाउंट है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. तो इसका दो इफेक्ट है, माइनस फ्रॉम एंट्रेंस फीस 60% and the amount which is remaining, show it in a income column, and 60% amount which is deducted also show it in the add in the capital fund. Then outstanding subscription for the current year was 20,000. इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर मतलब जो जिस साल का हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसी साल का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000 है. तो वो ऐड करना है, इनकम में ऐड करना है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, वो नीचे आएगा एसेट में, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में पार्टनरशिप के बताया था. सेम ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग इनकम की, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की होगी. प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000. द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस विच इज प्रीपेड, प्रायरली पेड, must be deducted from insurance amount and show it in the asset side of the current year balance sheet. Let's see how the income and expenditure account is prepared. जैसे मैंने बताया था आपको एक्सपेंडिचर साइड उससे प्रिपेयर करना है. करंट ईयर का रेंट आपको दिखाई दे रहा है डेबिट साइड में 54,300, करंट ईयर का इनर कॉलम में ले, जिसे एडजस्टमेंट है उस आइटम को इनर में ले लो. तो इसे मैंने इनर में लिया है. ऐड आउटस्टैंडिंग उसके नीचे बताया 7,000 जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. सो टोटल ड्यू रेंट इज 61,000, सॉरी ड्यू नॉट ड्यू, पे टोटल अमाउंट ऑफ रेंट इज 61,300. ड्यू कितना है, 7,000, जिसका सेकेंड इफेक्ट आपको लायबिलिटी में दिखाई देगा. सेकेंड इज sundry expenses 8,000, as it is amount is written because no adjustment provided. Then insurance is there, insurance inner column 12,000 less prepaid 1,000 because current year prepaid it is, इस साल में प्रीपेड किया है, मतलब अगले साल का, अगले कुछ महीनों का, इस साल के बाद 31 मार्च 2020 के बाद ये कुछ महीनों का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इस साल भरा था. So it should be excluded because it is not current year's expenditure. क्यों माइनस करना है, क्योंकि करंट ईयर का एक्सपेंसेस है नहीं, फिर भी आपको इस इंश्योरेंस के 12,000 के अमाउंट में दिखाई दे रहा था. तो एक्चुअल सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए हमें उस 1,000 को फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग हमें ये माइनस करना है. सो माइनस लेस प्रीपेड 1,000, आउटर कॉलम 11,000. Next is a printing and stationery purely expenditure item 6,000, to picnic expenses 18,000, to salaries 20,000 and lastly to traveling expenses 13,000. इन सबको कुछ एडजस्टमेंट नहीं थे, एज इट इज पोस्टिंग करना था, इजी है. लेट्स सी द क्रेडिट साइड, इनकम साइड. बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख. ये मैंने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिए ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा. सो सब्सक्रिप्शन गिवन हियर it is 3 figures 15,000, then 1 lakh, then 8,000. आउट ऑफ दैट 1920 का फिगर मैंने लिया है 1 लाख रुपीज़, जो मैंने अभी बताया था कि आपको कंसिडर कौन सा करना है, करंट ईयर का ही करना है. उसकी एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ आपको दिखाई दे रही है, दैट इज 20,000. सो 20,000 मस्ट बी एडेड
in the subscription figure. So total amount of income in the current year is 1,20,000. मतलब 1,00,000 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिला है और 20,000 मिलना बाकी है. सो एट total amount of source of subscription is 1,20,000. As I told you in the previous lecture, it is the biggest source of income for not for profit concern. Then by entrance fees 15,000 इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट है. लेस 60% कैपिटलाइज, 60% ऑफ अमाउंट इज 9,000. 15 6 90. So 9,000 is the figure which is capitalized, and outer column shows you the amount of income treated as income 6,000. और जो नहीं ट्रीट किया एज इनकम, जो कैपिटल फंड में डाला है वो कितना 9,000. कैपिटलाइज कर रहा मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना, ये ध्यान में रखना. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. इट इज प्योरली इनकम. सो इनकम आइटम, सो क्रेडिटेड बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. देन बाय पिकनिक रिसिट्स 20,000 पिकनिक रिसिट्स के अमाउंट हमें मिली थी, 20,000 ट्रीट कर लिए. क्रेडिट साइड मुझे ज़्यादा दिख रहा था 1,75,800, जिसमें से डेबिट साइड के सारे फिगर्स माइनस कर ली. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज शोइंग यू व्हाट क्रेडिट बैलेंस, एंड क्रेडिट बैलेंस इज अ प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में बोलते हैं सरप्लस. तो यहाँ पे डेबिट साइड में मैंने लिखा है सरप्लस 38,500. लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. इट इज बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ 2020. प्रायर टू दैट मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही पूछा है, पर इन एडवांस आई एम टेलिंग यू अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर इन एब्सेंस ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट द न्यू बैलेंस शीट, करंट ईयर बैलेंस शीट. उसके लिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना ज़रूरी होगा. ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ फिगर्स आपको लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में यहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी. तो मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट दिया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जहाँ पे आपको लायबिलिटीज एसेट साइड एज इट इज़ दिख रही है. जो ओपनिंग फिगर थी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, एसेट साइड ऑब्जर्व कर लेना. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों बैलेंसेस ओपनिंग फिगर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिट साइड पे दिख रहे थे. तो ये दोनों जो है ये लास्ट ईयर के एसेट है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे उनको लिखा है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसके नीचे दिख रहा है 15,000 का. वो कहाँ से आया? ये जो 15,000 का अमाउंट है ये आपको लास्ट ईयर के 15,000 आपको जो लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2018-19. मतलब ये लास्ट ईयर में 15,000 18-19 में कुछ क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था, इसी वजह से इस साल मिला है. दैट्स वाई इट इज़ ट्रीटेड एज अ एसेट इन द प्रीवियस ईयर. जो लास्ट ईयर में मिला नहीं था, मिलना बाकी था, तो हम इसे एसेट ट्रीट करते. सो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में मिल गया. इसी वजह से लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एज एन आउटस्टैंडिंग वी नीड टू शो. दैट्स वाई I have written it in the asset column outstanding subscription 15,000. ऐसे ही अब लाइबिलिटी साइड ऑब्जर्व कर लो. लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड तो हमें दिया नहीं, जो निकालना है हमें एक्चुअली, इसी वजह से ये प्रिपेयर किया है. सो कैपिटल फंड एज इट इज लीव इट एंड कम डाउन. You will see the outstanding advertisement. What is this? Why advertisement is written there? Because this advertisement you had seen in the payments column of 2018-19 we had paid it. प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे दिखाई दिया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है 2018-19 का 7,000 इस साल पे किया है, मतलब पिछले साल का क्या था वो आउटस्टैंडिंग था. वैसे ही रेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर 2018-19 का 700, वो भी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, इसी वजह से इस साल पेड किया. सो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नीड टू बी शोन इन द लास्ट ईयर लायबिलिटी. और एसेट में जो आपको 2018-19 का सब्सक्रिप्शन, इट इज़ आउटस्टैंडिंग इनकम.
Outstanding income shown in the asset, outstanding liability as expenses shown in the outstanding expenses shown in the liability side. So that's why outstanding rent and outstanding advertisement, these expenses were payable in the last year. That's why last year balance sheet liability side. ओके और इसी वजह से उनका ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया है. अल्टीमेटली आई हैव बैलेंस्ड इट. जो बैलेंस उसमें रहा था, क्रेडिट साइड में फिगर ज़्यादा दिख रही है 10,000, 19,000, 200, 15,000, उसकी टोटल मैंने कर ली माइनस 7,700 ऑफ लाइबिलिटी साइड, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिला 36,500 ऑफ द कैपिटल फंड which is treated as a capital fund of last year, closing balance of last year of capital fund. तो इस साल का वो ओपनिंग कैपिटल फंड हुआ, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड. इसी वजह से करंट ईयर के अब आ जाओ करंट ईयर के बैलेंस शीट में जो हमें सॉल्यूशन में लिखना था. दैट इज कैपिटल फंड 36,500 जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग. उसमें क्या एडिशन डिलीशन हुआ, जैसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए थे, उसमें पार्टनर्स कैपिटल के ओरिजिनल बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंसेस में हम ऐड लेस करते थे ना, नेट प्रॉफिट ऐड किया, कमीशन ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया. वैसे यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, एंट्रेंस फीस और सरप्लस. तो ये दोनों चीज़ें ऐड करके हमें क्या मिला, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड ऑफ 84,000. ये हमें जानना था. अभी इसका ओपनिंग कैपिटल फंड हमारे पास था नहीं, इसी वजह से हमने क्या किया, प्रिपेयर 2019 का बैलेंस शीट, उसमें से बैलेंसिंग करके कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस निकाला लास्ट ईयर का, और करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड उसे ट्रीट करके उसमें एडिशन डिलीशन करके नया बैलेंस फाइंड आउट कर लिया इस साल का, दैट इज़ 84,000. देन इट इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट. ये आपको मालूम है कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ये 7,000, करंट ईयर के ट्रीटमेंट अभी हम देख रहे हैं 7,000 ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट विच इज़ ए लाइबिलिटी. करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग रेंट था, लेट्स सी एन एग्जांपल इटसेल्फ बिकॉज यू माइट फाइंड एनी डिफिकल्टीज. यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी दिया है 7,000 और यहाँ पे हमने ऐड भी कर लिया है उसे, आउटस्टैंडिंग 7,000 एंड आउटर कॉलम 61,300. इसका सेकंड इफेक्ट हमने दिया. प्रीपेड का भी सेकंड इफेक्ट 1,000 का करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा. तो यहाँ पे 7,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाई दे रहा है 7,000. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन 2020-21 का है जो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई दे रहा था, जिसका ये इफेक्ट, एक ही इफेक्ट इसका यहीं पे आएगा. लेट्स सी इन एग्जांपल इटसेल्फ. हाँ, 2020-21 का 8,000 आपको दिखाई दे रहा है डेबिट साइड में. सेकेंड आइटम टू सब्सक्रिप्शन नीचे दिया है 2020-21, मतलब नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है विच इज़ अ नेक्स्ट ईयर इनकम बट रिसीव्ड इन दिस ईयर, सो इट बिकम लायबिलिटी ऑफ करंट ईयर. करंट ईयर में उसका कुछ काम नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो उसका काम कहाँ पे, यहाँ पे है. प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 8,000 इन द लायबिलिटी. इसके अलावा लायबिलिटी साइड में हमें कुछ दिया ही नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम में बताया ही नहीं बैलेंस शीट प्रिपेयर करो. पर इट इज़ अ टेडियस थिंग, डिफिकल्ट थिंग टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. आई एम टेलिंग यू इन एडवांस. इसका बॉदरेशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, ये बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आज देख रहे हैं हम. You need to just know the income and expenditure account in this first lecture. After 5-6 lectures you will able to solve like these problems. Fixed deposit there 47,000 which is given in the payment column. Cash in and cash at bank, ये दोनों क्या है, क्लोजिंग बैलेंसेस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड पे आपको दिखाई दे रहे थे. यहाँ पे पूरी चीज़ें आज आपको बता देता हूँ. 15,000 एंड 16,000 दीज आर द क्लोजिंग बैलेंसेस विच मस्ट बी रिटर्न इन द एसेट साइड. टिक मार्क तो हमने कर ही लिया है, सो इट विल बी नॉट फाइंडिंग एनी डिफिकल्ट फॉर यू. तो ये दोनों आइटम्स एसेट में आए. प्रीपेड इंश्योरेंस आपको जैसे मालूम है प्रीपेड लेस करते हैं और सेकेंड इसका इफेक्ट एसेट में आ जाता है. प्रीपेड और प्री रिसीव्ड फ़र्क है.
प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम होता है, प्रीपेड एक्सपेंडिचर होता है. तो प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड इन एडवांस इंश्योरेंस shown in the asset side. And lastly the outstanding subscription of current year. सी वाई करंट ईयर मतलब इसी साल का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था, जो हमने सब्सक्रिप्शन में ऐड किया था करंट ईयर के इनकम साइड पे. यहाँ पे 20,000 ऐड आउटस्टैंडिंग, 20,000 आउटर कॉलम 1,20,000. सो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 1,20,000. out of that outstanding is 20,000. Ultimately if you find the total of it is 99,000. It is a problem from your textbook. It is a easy problem to solve the income and expenditure only. For information I am giving just this balance sheet also of the current year, for which the last year balance sheet is also necessary. Some problems in difficult stage you will find these. So in the next year, that is FY BCom, you will find like these problems. On the basis of income and expenditure, you need to prepare receipt and payment account. So these are the basic requirements which must be known to you, कि आपको एसेट्स में क्या डालना है, लायबिलिटीज़ में क्या लिखना है, वो आपको समझ में आना चाहिए. इसी वजह से आज ये प्रॉब्लम का एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया है. इससे भी ज़्यादा डेप्थ में हम आगे जाके देखने वाले वीडियोस और मच मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व. पॉइंट टू रिमेंबर, आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखते वक्त आपको क्या क्या करना है. ऑब्जर्व द आइटम्स ऑफ पेमेंट साइड टू प्रिपेयर व्हाट, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर करने के लिए, उसमें से पेमेंट साइड प्रिपेयर करने के लिए कौन सी साइड, सॉरी एक्सपेंडिचर साइड प्रिपेयर करने के लिए पेमेंट साइड ऑब्जर्व करो, रिसीट एंड पेमेंट की. ऑब्जर्व आइटम्स ऑफ रिसीट साइड टू प्रिपेयर व्हाट, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ओनली ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ओनली करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. And next year must not be considered or deducted if they are included in the given amount of expenses or incomes. प्रीवियस स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक मैंने बोलते वक्त किया है कि आपको प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के जो भी आइटम्स है वो नहीं कंसिडर कर, नॉट कंसिडर्ड, इट्स मस्ट बी डिडक्टेड इफ इट इज़ इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस और इनकम्स. सेंटेंस के दो पार्ट है. इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ओनली ऑफ द करंट ईयर, मतलब इसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है. रिसीट एंड पेमेंट सारे रिकॉर्ड करता है जो पहले से मिले हैं लास्ट डेट तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च को, वेदर दैट इज ऑफ करंट ईयर और नॉट. इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स. इट इज़ जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट जैसा होता है इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट जैसा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बट इट रिकॉर्ड्स लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करंट ईयर्स एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. Let's go for the fourth point. Outstanding of current year must be added in that particular item of expenses or incomes. Outstanding of current year must be added. ऐड करना है आउटस्टैंडिंग के करंट ईयर के आइटम्स जो एडजस्टमेंट में बताए होंगे आपको. इन दैट पर्टिकुलर आइटम, मतलब सपोज टू बी सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम है ये, तो ऐड किया उसमें सब्सक्रिप्शन में, सो इट वुड बी ऑल्सो शोन इन द एसेट साइड. सेकेंड इफेक्ट भी उसके देने पड़ेंगे. आउटस्टैंडिंग फिगर्स ऐड करनी पड़ती है, प्रीपेड प्री रिसीव्ड सबट्रैक्ट करनी पड़ती है, जैसा आपने पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था. वही फिफ्थ पॉइंट में दिया है, प्रीपेड एंड प्री रिसीव्ड मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ एक्सपेंस और इनकम्स. एंड लेट्स सी लास्ट स्लाइड in which while preparing balance sheet what you have to remember. क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व आइटम्स ऑफ द लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड द पेमेंट साइड गिवन इन द प्रॉब्लम. ये किसके लिए, टू प्रिपेयर एसेट साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट.
इस साल का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए जो आपको इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन पार्ट बनता है बैलेंस शीट करंट ईयर का, उसको प्रिपेयर करने के लिए करंट ईयर की रिसीट एंड पेमेंट साइड की पेमेंट साइड ऑब्जर्व करो, दूसरा लास्ट ईयर का बैलेंस शीट भी ऑब्जर्व करो, दोनों का मिला के आपको एसेट साइड प्रिपेयर करते आएगा करंट ईयर के बैलेंस शीट का। नंबर 2, ऑब्जर्व आइटम्स ऑफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट एंड द रिसीट साइड ऑफ टू प्रिपेयर लाइबिलिटी साइड ऑफ करंट ईयर बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड अगर प्रिपेयर करनी है तो करंट ईयर की रिसीट साइड ऑब्जर्व करो, जहाँ पे हमने डोनेशन देखा था आज, पर वो डोनेशन जनरल टाइप था, अगर वहाँ पे स्पेशल लिखा होता तो वो लाइबिलिटी साइड का पार्ट बनता आज। ओके, सो that might be found in receipt side whatever the liability is required to be right in current year balance sheet। तो क्या ऑब्जर्व करना है, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड जिसमें कैपिटल फंड मिलेगा, अदर क्रेडिटर्स वगैरह आइटम्स मिलेंगे, दैट विल बी पोस्टेड। देन लास्ट थिंग, also take opening balances of capital fund from the last year balance sheet and then add items which are capitalized और surplus deficit वो भी add minus कर लो। इसी तरह से आपको ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टाइप ऑफ प्रॉब्लम बट it might be having some difficult adjustment. For that you have to prepare your base. You must have that much command on the basic fundamentals of accounting, then only you will be able to prepare whatever the required solutions of that problems, and you can get reward of full marks in this subject. So this is what for the today. We will see more problems in upcoming videos. If you understood this video, please write in comment box